Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. Today we would be continuing with our chapter Active and Passive Voice from our textbook Adventures with Grammar and Composition. So, students, I request you to open page number 114. As you can see in your book, we have already studied the change in the tenses, right? The change in the verb according to the tenses, right? When we change from active to passive voice, we need to look for the tense, which tense it is, and accordingly we make changes, right? So I hope that you remember these format which we have already studied. So we would just go through the changes which have taken place over here. So in simple present tense and simple past tense, the verb is changed to be verb plus past participle. So when the sentence is in present tense and active voice, it has only the verb, right? जैसे कि इसमें है the horse draws carriage. And when you change it into passive voice, it becomes is drawn, right? मतलब हम be verb use करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे past participle. And it depends on the subject of the sentence whether it is singular or plural. Subject means passive voice में subject की जगह पर receiver of the action आ जाता है. So in the position of the subject we need to see for receiver. जो receiver आता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से हमें हमारा बी वर्ब यूज़ करना है. ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट में बी वर्ब कौन कौन से यूज़ हो सकता है, इज़, एम और आर. एंड इफ इट इज़ पास्ट टेंस वी आर गोइंग टू यूज़ वॉज और वर. And as we have studied that if it is passive voice, we are going to use verb past participle. Okay, you need to remember that students कि जब भी हम active to passive करते हैं तो हमारा verb passive voice में होता है, और उसके साथ जो be वाला verb होता है that depends on your tense and the number of your subject, मतलब whether it is singular or plural. Now in the same way, second one is past tense. They called the guards. And over here, if you say the guards were called by them, right? So the verb is changed to be verb plus past participle. जैसे कि draw का हो जाता है, draw या draws है तो उसका हो जाता है is और are drawn. और अगर पास्ट टेंस है तो वो होगा ड्रू इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ड्रॉ. और अगर हम उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम यहाँ पे वॉज या वर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल दैट इज ड्रॉ. नाउ लेट्स सी सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस वी आर गोइंग टू राइट विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. आपका जो एक्टिव वॉइस होगा, इफ यू सी योर स्टूडेंट्स, इट वुड बी जस्ट विल विजिट, राइट? सो यहाँ पे आपका विल होगा, फ्यूचर टेंस है तो, और उसके साथ एडिशन होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट? मतलब प्रेजेंट फॉर्म जो है वो. एंड व्हेन वी चेंज इट वी जस्ट हैव टू ऐड बी and the verb would be again in the past participle form. Okay, it's written over here. For example, will visit का हो जाएगा will be visited. और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि when we are talking about future tense we don't need to worry कि हमारा will किसके साथ जाएगा, राइट? हम will हर पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, मतलब सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन जो भी है उसके साथ हम विल या शैल यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे उस चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होता है. और विल मीट का हो जाएगा विल बी मेट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूअस टेंस.
In this form we are going to add being is added after the be verb and the present participle of the verb. If you see the sentence over here, students, present continuous tense. Cooks are making chapatis. So as I told you in the previous class that how will you make it out कि ये continuous tense है कि नहीं है, तो वो depend करता है आपके verb के ऊपर जो ing फॉर्म में होगा, मतलब present participle, और उसके आगे वाला जो helping verb है वो is am are होता है तो प्रेजेंट है, और अगर वॉज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस है. ठीक है. एंड व्हेन वी चेंज इट यू नीड टू रिमेंबर, हम पहले लिखते हैं हमारा बी वर्ब, उसके बाद ऐड होगा बीइंग, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड अवर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. ओके. इन द सेम वे पास्ट कंटिन्यूअस, दिस इज वर राइटिंग. व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू राइट इज बी वर्ब, उसके बाद बीइंग, एंड उसके बाद हमारा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल. Okay, now let's move on. So here you can see, for example, are making का हो जाता है are being made, right? और were writing का बन जाता है were being written. Note, generally we do not use passive voice for the sentences which have future continuous tense. Okay, now let's move on to the next one, that is present and past perfect tense. Been is inserted between has and have and the past participle of the verb, right? For example, if it is present perfect, हम has या तो have लिखेंगे और उसके बाद हम add करेंगे been, and thereafter we would be having our verb past participle, right? has आता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सबके साथ हम यूज़ करते हैं have. And if it is past perfect continuous, there is no such thing like singular plural. We have to use had with all kind of persons and all kind of number of persons. लेकिन had और उसके साथ हम ऐड करेंगे been plus verb का past participle. And this is the format of passive voice. Okay, don't forget that. हम been किस में ऐड करते हैं? passive voice में ऐड करते हैं. एक्टिव में नहीं होता है. एक्टिव में सिर्फ had प्लस verb past participle होता है. ठीक है, ध्यान रखना. See, if you see here, had reported becomes had been reported. have completed has been completed. has been भी हो सकता है और have been भी हो सकता है. It depends on the subject of the sentence. So students, I hope that you are clear with all the rules related to active and passive. पर्सनल प्रोनाउंस वाले रूल्स भी हमने पढ़ लिए. हम पैसिव कब बनाते हैं, हाउ डू वी फॉर्म एक्टिव टू पैसिव, एंड अकॉर्डिंग टू द टेंसेज ऑल्सो वी हैव स्टडीड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव टू अंडरगो, राइट? सो नाउ वी वुड बी डूइंग एक्सरसाइज सी. सो लेट्स सी दैट. Here is a passage on how idlis are made. Fill in the blanks using simple present tense of the verbs in the brackets in these passive sentences. So now you don't have to get confused over here, because आपको present tense ही दिया हुआ है. तो present tense के हिसाब से हम passive voice कैसे बनाते हैं? is am or are plus verb का past participle, right? तो bracket में जो verb दिया है उसका past participle use करना है, और subject के बेस पर, मतलब जो भी subject की जगह पर है उसके हिसाब से इज एम आर लगाना है. लेट्स सी द फर्स्ट वन. इडलीज आर मेड विथ राइस ग्रेन्स एंड उड़द दाल. इडलीज आर प्लूरल, इसीलिए हमने आर यूज़ किया है. फर्स्ट, राइस ग्रेन्स एंड उड़द दाल आर soaked, okay, in the water for at least 3 hours. सोक का हो जाएगा सोक्ड, और राइस ग्रेन्स एंड उड़द दाल मतलब प्लूरल है, इसीलिए हमने आर यूज़ किया है. देन दे अगेन इज प्लूरल, सो वी आर गोइंग टू राइट आर ग्रिंडेड. ओके, देन दे आर ग्रिंडेड टू मेक बैटर, एंड
it dash overnight. It again is थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. इट क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है, तो हम लिखेंगे इज केप्ट. इट इज केप्ट ओवरनाइट टू फर्मेंट. नेक्स्ट डे द बैटर इज अगेन सिंगुलर, सो वी विल राइट is poured into the idli trays in small measures. The idlis are steamed. Idlis again plural है और steamed हमारा past participle for 15 minutes. Since no oil is again singular, uncountable and singular. So हम लिखेंगे since no oil is required. While cooking, idlis make a healthy diet. Okay, I would be sending you the answers. Don't worry. First, understand all the exercises. Now, let's see exercise D. You need to complete the following conversations between Anna and Sonia with passive forms of verbs. And ये जो है उसमें आएगा simple present, past and future tense. So you need to find out whether that sentence is in simple present, past or future. Okay. Anna. Hey, look at this picture of an old fort. I have never seen it before. Sonia. Oh yes, I know this fort. It is in Maharashtra and it is called, this is present tense. Okay students. तो हम लिखेंगे it is called the Raigad Fort. Raigad was the capital of Shivaji's kingdom. Anna, it looks so grand. Tell me more about it. Sure. It is a very old fort. It dash in 1030 by Chandra Rao More. So students here I think 1030 है, मतलब it's in past tense, right? So यहाँ पे हम लिखेंगे it was built, okay, by Chandra Rao More. It dash by Shivaji in 1656 and it dash his capital. So कब कैप्चर हुआ, शिवाजी ने कब कैप्चर किया था? These all things are history, right? कि चंद्र राव ने बनाया, then Shivaji captured and he made his capital. So all these things are past tense. So we are going to write was captured and the last one is make का हो जाएगा it was made, right? It's capital. Now Anna, what is there to see in the fort? Sonia, well, ruins mostly, but there is a lake which is a lake, right? तो हम लिखेंगे is called, क्योंकि ये वापस present tense है, which is called Ganga Sagar. There is also a cliff near there. That area dash off now. That means फेंस है, मतलब बंद कर दिया गया है. ऑफ नाउ दैट मीन्स हम लोग वापस प्रेजेंट टेंस लिखेंगे. दैट एरिया इज फेंस्ड ऑफ नाउ बट इट डैश फॉर विजिटर्स बाय 2020. सो ये अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है, तो ये होगा हमारा फ्यूचर टेंस. तो हम लिखेंगे इट विल बी ओपनड बाय open for visitors by 2020. Although we are in 2021 students, लेकिन ये जब बुक लिखी गई होगी तब 2020 नहीं आया था, ठीक है, इसीलिए. सो आई होप कि ये एक्सरसाइज भी क्लियर है. अभी ये जो सेंटेंसेस है उसको हमें पैसिव से एक्टिव करना है. यू नीड टू चेंज दिस पैसिव सेंटेंसेस टू एक्टिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप इन माइंड दिस टेबल, this table which is given over here, जिसमें एक्टिव पैसिव दोनों है. तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा चेंजेस करना है.
ठीक है। इज़ ड्रॉन है तो ये सिर्फ सिंपल हो जाता है। यहाँ पे अगर आपका पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का, तो अगर पास्ट टेंस हुआ तो हम सिर्फ पास्ट वर्ब लिखेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर में कैसे करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस। ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज ओवर हियर। स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट नोट डाउन कि आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट और टेंस कौन सा है, ठीक है। तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है द रोड्स आर बीइंग स्वेप्ट बाय स्वीपर्स, राइट। सो यहाँ पे हमारा वर्ब है आर बीइंग स्वेप्ट, राइट। स्वीपर्स है हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, और रोड्स है हमारा ऑब्जेक्ट मतलब रिसीव कर रहा है। और बीइंग हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन इट इज़ कंटिन्यूअस टेंस, राइट। और आर यूज़ किया है मतलब हमारा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब हम चेंज करेंगे तो हमारा जो वर्ब होगा वो वापस प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा और बाई निकल जाएगा, है ना। आर तो रहेगा ही कंटिन्यूअस टेंस में, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब तो रहता ही है, लेकिन हम बीइंग निकाल देते हैं और स्वेप्ट का हो जाएगा स्वीपिंग, आईएनजी फॉर्मेट आ जाएगा। सो लेट्स राइट द आंसर। स्वीपर्स आर sweeping the roads, ओके। स्वीपर्स आर स्वीपिंग द रोड्स, ये सब्जेक्ट आ गया हमारा पहला, राइट। उसके बाद हमने ऐड किया आर जो ऑक्सिलरी है, और ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए, ठीक है। Now let's move on to next one. The monkeys were being teased by the boys. Now students, were being teased, that is our verb. उसमें being यूज़ हुआ है और साथ में है were, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, past continuous, okay, remember that, past continuous tense है हमारा। boys क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और मंकीज़ है हमारा ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू मेक इट इनटू एक्टिव वॉइस, वी डोंट यूज़ बाई, वी डोंट यूज़ बीइंग, और टीज्ड का हो जाएगा टीजिंग, वर रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अगर सिंपल होता तो हम इज एम आर वॉज वर निकाल देते, लेकिन कंटिन्यूअस है तो हमें हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स चाहिए होंगे, तो वो हमें रहने देना है। So, what would be the answer over here, students? The boys were teasing the monkeys, right? So, here students, were टीजिंग, ये क्या प्रेजेंट करता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। Now let's see third one. Mary had been examined by Dr. Vinod. Had been examined, this is our verb. डॉक्टर विनोद है हमारे सब्जेक्ट और मैरी है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी हम हैड बीन एग्जामिन्ड, हैड हम किस में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है तो उसमें से हमें सिर्फ बीन निकाल देना है और बाय निकाल देना है, और सब्जेक्ट वापस आके आ जाएगा और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। सो आवर आंसर वुड बी डॉक्टर विनोद हैड एग्जामिन्ड Mary. Okay students, had examined, ठीक है। See here in this sentence, had reported और had been reported, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, had reported, they had reported, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है।
Okay. Now let's see next one. A new university has been opened in Rajasthan. So students, here our verb is has been opened, right? Where it is opened? In Rajasthan. किसने ओपन की है ये तो हमें पता ही नहीं है ना? So when we don't know our doer of the action, right, we can write someone or somebody, है ना? क्योंकि राजस्थान में न्यू यूनिवर्सिटी ओपन हुई है. ओपन करना किसने किया ये एक्शन? हु ओपनड इट? इट्स नॉट रिटर्न एनीवेयर. इन राजस्थान तो जगह मेंशन की हुई है. सो वी डोंट हैव अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ओके, सो वी विल डू अबाउट दैट, बट लेट्स जस्ट फाइंड आउट द टेंस. उससे पहले ये न्यू यूनिवर्सिटी जो है वो रिसीवर है हमारा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट. और हैज़ बीन ओपन मतलब ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, तो इसमें भी हमें बीन निकाल देना है. और जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं तो बाई भी यूज़ नहीं हुआ है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आंसर हमारा somebody has opened a new university in Rajasthan. So now students, if you see this sentence, has opened, that represents our present perfect tense. Okay. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, सो वी कैन राइट समबडी और समवन. ओके, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया कि किसने खोला है, इसलिए. नेक्स्ट वन, द वर्म इज कॉट बाय द अर्ली बर्ड. सो योर स्टूडेंट्स, अवर वर्ब इज कॉट, है ना? तो अभी यहाँ पे इज यूज हुआ है और हमारा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब बी प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और द अर्ली बर्ड है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि उसने ही एक्टिविटी की है, डूअर ऑफ द एक्शन है वो. तो जब हम चेंज करेंगे बेटा इसके अंदर, तो पहले तो बाय निकल जाएगा, एक्टिव वॉइस में बाय नहीं आता है. और जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग बी वाला जो वर्ब होता है, ठीक है, वो निकाल देते हैं. और ये कॉट जो है उसका हम वापस कर देंगे कैच या फिर कैचेस, depends on the subject of the sentence. So let's write it down. सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट द अर्ली बर्ड. अभी ये बर्ड क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एस वाला साउंड. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. ओके, सो इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस किया तो उसमें हमें बी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारा जो वर्ब होता है वो वापस V1 के फॉर्मेट में आ जाता है. ठीक है, जो ये है, और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर. यहाँ पे अर्ली बर्ड है जो सिंगुलर है, इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर टिल हियर. वी वुड डू द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, टुमारो, and we would be done with our grammar syllabus. Only one topic would be remaining, that is informal letter. I would be doing that on Monday. Okay, and I would be sending you the PDF of all the exercises tomorrow along with the next topic, that is interrogative statements. Thank you.